नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बंगाल न्यूज। कश्मीर फाइल देखने के बाद तमाम धर्म गुरु का क्या है कहना। और आपको बता दूं कि जब से कश्मीर फाइल मूवी लॉन्च हुई है तब से लोगों को भड़काने की काम की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना है। तो आइए आपको दिखाते हैं तमाम धर्म गुरु का कश्मीर फाइल को लेकर क्या है कहना और इस मूवी में कितनी सच और कितनी झूठ पेश की गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। इंडियान इज सेकुलर কান্ট্রি। 1950 সালে 26শে জানুয়ারি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যে সংবিধান রচনা করেছিলেন, যে কনস্টিটিউশন, তাতে লেখা আছে ইন্ডিয়ান ইজ সেকুলার কান্ট্রি। কিন্তু আজকের যে দ্য কাশ্মীর ফাইলস মুভিস আমরা একসাথেই দেখলাম, এখানে আমরা মুসলিম, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সব একসাথে মিলেমিশে আমরা যে আজকের মুভি দেখলাম দ্য কাশ্মীর ফাইলস, এখানে পিকচার আবি কুছ বাকি হে। এখানে যা দেখলাম যে কাশ্মীরের উপত্যকায় যেভাবে মুসলিম নিধন করা হয়েছে, যেভাবে মুসলিমদেরকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যে মিডিয়াতে দেখেছিলাম, সোশ্যাল মিডিয়াতে, আজকের পুরোটাই উল্টে দেওয়া হয়েছে। সিনেমা ইজ ড্রামা। আমার তো মনে হলো পুরো টোটালটাই নাটক। এবং সিনেমার যে চিত্র আমি দেখলাম, যে কৃষ্ণা বলে যে কলেজ স্টুডেন্টস, সে নিজেই বললেন যে এটা হলো ড্রামা, সিনেমা একটা ড্রামা। তো এই সিনেমা ড্রামা বিজেপি উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই সিনেমা তৈরি করেছে। আমি জাতি ধর্ম দলমত নির্বিশেষে নানা জাতির নানা মত নানা পরিধান বিবিধের আছে দেখো মিলন মহান। সে আমরা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, জৈন, পাঞ্জাব ও সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকলবঙ্গ, আমরা একসাথে মিলেমিশে যেমন অতীতে ছিলাম, আজও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। ইন্ডিয়ান ইজ সেকুলার কান্ট্রি। আমরা মিলেমিশে বুকে আলিঙ্গন করে আমরা একই সাথে থাকবো। আজকের গোটা যে মুভি দ্য কাশ্মীর ফাইলস দেখে মনে হলো টোটালটাই ড্রামা। এটা বিজেপির উদ্দেশ্য প্রণোদিত তৈরি হয়েছে। আসল সিনেমা তৈরি হোক, গুজরাটের যে প্রভাকাণ্ড সেটা তৈরি হোক, কাশ্মীরের যে উপত্যকায় মুসলিম নিধন করা হয়েছে, বাচ্চা শিশুদেরকে মারা হয়েছে, মহিলাদেরকে রেপ করা হয়েছে, সেটাই কিন্তু আজকের ফুটিয়ে তোলা হলো না। টোটালটাই ড্রামা। এই ড্রামা নিয়ে কি বিভ্রান্ত হবেন না। আমি আজ মুসলিমদেরকে বলবো, আপনারাও বিভ্রান্ত হবেন না। আমার মুসলিম কমিউনিটিদেরকে বলবো যে আপনারা শান্ত থাকুন। এই সিনেমা দিকে কোনো উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা সিনেমার গল্প কেমন দেখি, যে সিনেমার নায়ক থাকে, সে পাহাড় থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কখনো মেরে দেয়, কখনো সাগরে ফেলে দেয়, কখনো সিনেমার নায়ক যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আলাদিনের মায়ের প্রদীপ মতো, আশ্চর্য প্রদীপের মতো আজকের যে 25 জনাকে যেভাবে গুলি করে মারা হলো, এটা একদম অবাস্তব সত্য, অবাস্তব সত্য, অবাস্তব সত্য বলে মনে হলো। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। ইসলাম ইজ নট রিলিজিয়ান বাট ইসলাম ইজ পিস। দ্য হলি কোরআন ইজ ভেরি ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। কোরআন শরীফে বলা হয়েছে লাকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন, যাদের ধর্ম তাদের কাছে। আরেকটি আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে, আয়াত মিনস সেন্টেন্স, যাকে বাক্য বলে বাংলায়, সেখানে বলা হয়েছে লা ইকরাহা ফিদ্দিন, ধর্ম নিয়ে কোনো জড়জবস্তি নেই। হিন্দুরা তারা অনায়াসে তারা মন্দিরে গিয়ে অঞ্জলি দিতে পারবেন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, বিজয় দশমী পালন করতে পারবেন। মুসলিমরা মহরম এবং ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহার নামাজ পড়তে পারবেন, নবী দিবস করতে পারবেন, তারাবি নামাজ করতে পারবেন। আমার বুদ্ধিস্ট যারা আছেন, আমার গুরুজি এখানে আছেন, তারা যেভাবে তাদের রীতি নিয়ম সেইভাবে তারা মানতে পারবেন। খ্রিস্টান ধর্মে যারা আছেন, তারা যেভাবে গির্জায় গিয়ে তাদের যে রীতি নিয়ম, তাদের ধর্মীয় আচরণ সব পালন করতে পারবেন। এটা আমার কোরআন দিয়েছে, সেই জন্য আমি প্রাউড, আমি গর্বিত যে আমার কোরআন, দা হলি কোরআন, প্রত্যেকটা ধর্মের তাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু এখানে যেটা দেখানো হয়েছে সেটা একেবারে কোরআন বিরোধী, ইসলাম বিরোধী এবং এটা আমাদের সমাজ বিরোধী। ইসলাম ইজ নট রিলিজিয়ান বাট ইসলাম ইজ পিস। দেখুন, আমাদের হাসানুদ্দিন ভাই যেটা বললেন, আমার কাছে একটা প্রস্তাব এসেছিল যে সিনেমাটার উপরে আমাদের একটা প্রতিবাদ করার জন্য। আমি প্রথমে প্রস্তাব দিয়ে সিনেমাটাকে আমি দেখব, তারপরে আমরা প্রতিবাদের পাশে আছে কিনা দেখব। সিনেমাটা দেখে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, একজন ধর্মগুরু হিসাবে আমার যেটুকু মনে হলো, দেখুন, যখন কখনো যদি আক্রমণ হয় উভয় পক্ষ থেকে, কখনো বেশি হয়, কারো পক্ষ থেকে কম হয়। এখানে দেখানো হলো যে যারা কাশ্মীরি মুসলিম তারা পণ্ডিতদের উপর আক্রমণ করেছেন, এই বিষয়টার উপরে সিনেমাটা তৈরি করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য যেটা, অনেক কিছু তো লুকিয়ে গেছে এবং এটাই মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টা করা হয়েছে যে 370 আর্টিকেলকে তুলে দেওয়ার পেছনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে ভূমিকা রেখেছিলেন। এবং এখানে আরেকটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে মুসলিমদেরকে, অর্থাৎ স্পেশালি ফর মুসলিম, এখানে কিন্তু বৌদ্ধদেরও অর্থাৎ তুলে ধরা হয়েছে, শিখদের তুলে ধরা হয়েছে, সবাইকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের প্রতি মানুষের মধ্যে একটা ঘৃণা, একটা বিদ্বেষ জাগানোর ভাবনা এই মুভিতে আমি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধ করলাম। সত্য কিছুটা আছে,
কিন্তু সেটা উভয় পক্ষ থেকে সত্যটা আসতো তাহলে আমাদের ভালো লাগতো। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপরে আক্রমণ হয়েছে সেটা আমরা ইতিহাসে অনেকবার পড়েছি, কিন্তু কাশ্মীরের মূল ইতিহাস সেই ইতিহাসকে তুলে না ধরে, উভয় পক্ষের বিষয়টা তুলে না ধরে, কিন্তু যেভাবে এক পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়েছে, শুধু কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মারা হয়েছে যে বিষয়টা তুলে ধরা হয়েছে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। এবং লাস্টে যে সেন্টার দেখানো হলো এর মধ্য দিয়ে যারা মুসলিম যারা আছে, এখানে টেরোরিস্ট দেখাচ্ছে ঠিক কথা, কিন্তু মুসলিম যারা আছে তাদের প্রতি আমাদের হিন্দু, বৌদ্ধ, অন্যান্য যারা আমরা ধর্মীয় মানুষরা আছি, তারা যেন মুসলিমদের উপর একটা আমরা বীতশ্রদ্ধ হই, সে একটা ভাবনা আমার মধ্যে এটা ফুটে তোলার চেষ্টা করেছে যারা দর্শক থাকবেন তাদেরকে। এর মধ্য দিয়ে কী হবে, আমাদের দেশটা যে অখণ্ড ভারত, এই অখণ্ড ভারতের মধ্যে আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ সকল ধর্মের মানুষের মিলেমিশে থাকি। কোনো একটা ছোটো ইস্যু আসবে, সেই ইস্যু নিয়েই এখানের মধ্যে একটা দাঙ্গা লাগাবার একটা চেষ্টা হবে, এই নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিভাজন করার চেষ্টা হবে। এই বিভাজন ভারতবর্ষের রীতি নয়। মানুষের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি, ভালোবাসার জাগানো আমাদের মনীষীদের শিক্ষা। সেই শিক্ষাটাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য যিনি লিখেছেন, যিনি প্রডিউস করেছেন, যারা প্রযোজনা করেছেন, যারা এটাকে সাপোর্ট করছেন এই মুভিটাকে, সে ভাবনাটুকু মানুষের মধ্যে ঢুকে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভাজনের বিভাজনের বীজ পুঁতে দেওয়ার এই কাজটা করা হচ্ছে। সুকৌশলে তার প্রতিবাদ জানাই, তাকে ধিক্কার জানাই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি এই ভারতবর্ষে সকল মানুষের সমান অধিকার। আমরা সকলে, আমরা বৌদ্ধরা, আমরা হিন্দুরা, আমরা খ্রিস্টানরা, আমরা মুসলিমরা, আমরা শিখরা, আমরা সকলে ভারতবর্ষের এক একটা ফসল, এই ফসল হয়ে ভারতবর্ষকে ঋদ্ধ করব, সমৃদ্ধ করব, এবং সকলের ধর্মের মধ্য দিয়ে এই সামান্য ছোটোখাটো বিষয় দিয়ে মানুষকে ভুল ভ্রান্ত দু একজন মানুষকে আপনারা মিডিফাই করতে পারবেন, বিভ্রান্ত করতে পারবেন, কিন্তু সত্যিগতে ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনগণকে আপনারা কখনো বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। এটাই অল ফেথ एसोसिएशन पक्ष থেকে আমাদের বার্তা। जो दिखाया गया है ये पॉलिटिकल हिस्सा है, इसमें दिखाया गया है एक तबके को जो है नीचा दिखाया गया है, जो कि हमारे हिंदुस्तान की छवि को एकदम ख़राब कर रहा है। ये हिंदुस्तान किसी एक मजहब या किसी एक धर्म ने आज़ाद नहीं करा है। इस आज़ादी में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खून गिरा है। तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि पर्टिकुलर किसी धर्म का जो है एक अधिकार इस हिंदुस्तान में नहीं है। इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सब धर्मों ने मिल के जो है योगदान किया है। अब जैसे इन्होंने ये दिखाया, मैं ये भी कहूँगा कि अब अगर ये 1984 का जो कांड हुआ था उसके लिए भी हम लोग अगर ये कहें तो क्या आज हमारा हिंदुस्तान नहीं है? हमारा हिंदुस्तान है। वक्त के साथ हर जख्म होते हैं तो वो भर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन जख्मों को कुरेद करके जो है हम हिंसा को बढ़ावा दें। हम ऐसा नहीं चाहेंगे। ये जो पिक्चर बनाई गई ये हिंसा को बढ़ावा देने के लिए और एक तबके को छोटा दिखाने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा गया है, इसका मैं जो है पुरजोर से निंदा करता हूँ। जे हम लोग जो है आज यहाँ ये पिक्चर देखने के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग जो है जो एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो है जो हम लोग से होगा, हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे और इस पिक्चर की हम जो है खंडन करते हैं। मैं डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्षु, मैं एक बौद्ध धर्म गुरु हूँ। हमारा गौतम बुद्ध ने हम लोग का शिक्षा दिया अहिंसा परम धर्म। ये अहिंसा परम धर्म को हम लोग मानते हुए आज कश्मीरी फाइल्स मूवी देखने के बाद हम लोग को ये प्रतिमान हुआ है, ये मूवी एक जाति विशेष को, एक धर्म विशेष को अलग करने का एक सुकौशल माध्यम हुआ। इसके साथ साथ पॉलिटिकली भी इधर एक सुकौशल में कांग्रेस को भी इधर आघात किया। लेकिन जब ये कांड घटा हुआ है तो अब बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट सेंट्रल में था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। आज 2022 में ये फिल्म मूवी बनाकर हम लोग का बीच एक नफरत का बीज फैलने का कोशिश किया। इसको मैं निंदा करता हूँ। और हम लोग ये सेकुलर इंडिया में एक सेकुलर आदमी बन के हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, सिख सब आदमी ने हम लोग सेकुलर बनकर बाबा साहब डॉक्टर बी आम्बेडकर ने जो संविधान हम लोग को दिया वो संविधान मानकर हम लोग एक साथ में है, एक साथ में रहूँगा। গুরুজি যেটা বললেন সেটাই আমাদের একই কথা। আমরা আজকের যে সিনেমাটা পুরো কমপ্লিট দেখলাম, এখানে একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, একটা কোনো একটা জাতিকে এক পেশোয়া করে তাদের উপরে বিদ্বেষ ঢোকানোর জন্য এই সিনেমা। তো আমি জাতি, ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে সকলকে রিকোয়েস্ট করব, সকলকে অনুরোধ করব, এই সিনেমা দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। আমরা যেমন বিগত দিনে একসাথে ছিলাম, আছি এবং থাকব। এবং গুরুজি যেটা বলেছেন অতি সত্য কথা, যে তখন সেন্ট্রালে কিন্তু ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার। তাহলে বিজেপি সরকার কি হাত গুটিয়েছিল?
আজকের যে সিনেমা 2022 সালে রিলিজ করে যে একটা যে বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে, এই বাতাবরণটা দিন দিন কিন্তু বেড়েই চলবে। আমি বলবো অবিলম্বে জনমত তৈরি করে এই সিনেমা বন্ধ হওয়া উচিত এবং এই সিনেমা বাজেপ্ত করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করছি। है ना, ये मूवी मेरे हिसाब से सब सेंसर बोर्ड ने ये मूवी पास कैसे किया, पहला क्वेश्चन ये है। बिकॉज हम इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके इमोशंस सबके फ्रीडम को बहुत अच्छे से यहाँ पे आज़ादी मिली हुई है। हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम सारे फेस्टिवल मिलजुल के मनाते हैं। आप एज अ कॉमन सिटीजन आप देखिए, जब ये मूवी देख कर आते हैं तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में आपके अंदर एक हेट पैदा किया जा रहा है, और ये हेट किसी भी रिलीजन में नहीं दिखाया जाता। चलिए मैं मानता हूँ 25 साल पहले गलत हुआ, तो गलत तो हर रिलीजन के हिसाब से गलत है। आप किसी भी रिलीजन, जैसे अगर आप बात करें इस्लाम में ने गलत किया, तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि पहला शैतान सबसे ज़्यादा इल्म वाला वो भी मुसलमान ही कह लीजिए, क्योंकि वो अल्लाह का बहुत क्लोज था, लेकिन उसके ईगो ने आज उसको शैतान बना दिया। तो शैतान तो हर जगह, जो भी इंसानियत का दुश्मन वह शैतान, चाहे वो हिंदुइज़म रिलीजन से हो, बुद्धिस्ट रिलीजन से हो, क्रिश्चियन रिलीजन से हो, जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, इक्वालिटी के अगेंस्ट हो, सोसाइटी में नफ़रत फैलाए, वो शैतान, वो एनिमी है। और चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, एनिमी होना चाहिए। एनिमी के नज़रिए से देखिए, जिसने गलत किया वो दुश्मन, चाहे वो कोई भी कौम से हो। जो अभी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को समझिए, ये सोसाइटी में डिसबैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आपके थ्रू ये मैं मैसेज पास करना चाहूँगा, क्या हमारे पीएम साहब के पास, हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास इतना टाइम है कि वो एक मूवी के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं? उतना टाइम अगर वो देश के लिए कोई अच्छी बिल पास कर दे, लाखों हज़ारों करोड़ों इंडियंस का फ़ायदा हो जाएगा। हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमारे पास 50 मुद्दे हैं। नौकरियाँ कम हो रही हैं, देखिए अब नौकरियाँ कम हो रही है, पेट्रोल के प्राइसेस देखिए कहाँ जा रहे हैं, डीजल के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो आज के डेट पे प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है। 50 मुद्दे, देश में सिक्योरिटी को भी लेकर जो प्रॉब्लम होती है, अक्सर आप सुनते हैं कि चाइनीज़ आर्मीज़ कहीं पे आ जाती है, हमारे कंट्री में इन कर जाती है, या बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़ में आप न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो 50 ऐसे मुद्दे हैं, पहले हमें वो देखने की ज़रूरत है। आज मुद्दा ये होना चाहिए, आज सोचिए ये हमारे लिए देखा जाए तो ये शर्म की बात है कि हम आज एक मूवी के पीछे पूरे इंडिया पागल हो रही है। गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये जो मूवी दिखाया जा रहा है ये भी गलत दिखाया जा, पर उससे कहीं ज़्यादा और मुद्दे हैं हमारे देश के लिए। हमारी इकोनॉमी दिन पर दिन देखिए क्या हालत हो जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, लोगों को डेली लिविंग स्टाइल, मिडिल क्लास को किस तरह से स्ट्रगल करके अपनी लिविंग स्टाइल जी रहे, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और सबसे अहम जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब तक आप सवाल करना नहीं सीखिएगा तब तक हमारा देश इम्प्रूव नहीं होगा। आपको सवाल करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई लीडर हो। जब आपको वो कोई चीज़ अगर कमिट करके चले जाते हैं, तो जब वो नेक्स्ट रैली में अगर आपके सामने आते हैं तो वो सवाल आप उठाइए कि 5 साल पहले आपने ये सवाल किया था, आपने हमें ये सपने दिखाए थे, वो कहाँ है हकीकत लेवल पे। तो जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और एक और बात समझने की ज़रूरत है, इस सेंसिटिव मैटर को लोग बहुत गलत तरीके से सोसाइटी को डिसबैलेंस करने के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे रिलीजन के लोगों से मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 बहकावे में मत आइए। इंडिया इज़ डिफाइंड फॉर यूनिटी। इंडिया एक बहुत सेकुलर कंट्री है, तो इसकी सोसाइटी का बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अंदर समझदारी होनी चाहिए और ये हमारी सोच को उस लेवल पे डेवलप करना चाहिए कि कोई भी अगर मूवी दिखाकर हमारे सोच को इतना डाइवर्ट नहीं कर सकता। आप एक चीज़ समझिए, जब हम बड़े बच्चे थे तो अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ये फिल्म है, रियलिटी में कुछ नहीं होता ऐसा, राइट कहते हैं ना, ये फिल्मी दुनिया, यहाँ एक हीरो 50 विलेन को मार देता है, रियलिटी में तो नहीं हो सकता। तो बस इसको फिल्म के तौर पे लीजिए। इससे इंस्पायर होकर आके किसी मुस्लिम को या किसी अदर रिलीजन के लोगों को अटैक नहीं करना चाहिए। बिकॉज चलिए मैं मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए आप इन्फ्लुएंस में आ गए, तो क्या आपने किसी दूसरे रिलीजन के बंदे को अगर आपने टॉर्चर किया, क्या वो वही बंदा था जिसने उस मूवी में कुछ वैसी चीज़ें करी होंगी? तो उस इंसान की तो कोई गलती नहीं थी, तो आप किसी और की सज़ा किसी और को क्यों देंगे? हमारा संविधान भी यही कहता है ना कि चलिए 10 गुनहगार छूट जाए,
लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो जिसको आप टॉर्चर कर रहे हैं ये मूवी देखने के बाद या डिसबैलेंस, क्या वो गुनाहगार है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम मूवी देखने के बाद या जो इन्फ्लुएंस होके जो 10 नए गुनहगार बना रहे हैं, एक्चुअली हम नए गुनहगार बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम। सिर्फ खून करने वाले को सज़ा नहीं मिलती हमारे कानून में, जो उनको मोटिवेट करते हैं, जो उनको यूटिलाइज़ करते हैं, उनको भी सज़ा मिलती है। तो ये जो सोसाइटी में डिसबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। ये सवाल तो हम पब्लिक को देखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जब वो सेंसर बोर्ड इस तरह के मूवीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल आम जनता को देखने के बाद, देखिए सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, आप किसी से कहीं भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ज़रिया है कि क्वेश्चन करना सीखना होगा। जब ये मूवी आई तो उसके अगेंस्ट में भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। गलत हुआ, इससे कोई डिफाइन नहीं कर सकता, जो हुआ वो गलत था, और अभी जो इस मूवी के बाद जो हो रहा है वो भी गलत है। मैं पहली वाली गलती को भी ये करता हूँ कि वो जो हुआ इंसिडेंट वो बहुत शर्मनाक है, हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत शर्मनाक है। बीइंग एज ए इंडियन, हमारी कंट्री में ऐसी चीज़ें हुई वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इस मूवी के देखने के बाद जो यूथ जो मैनिपुलेट हो रहे हैं और उल्टे फुल्टे हरकतें कर रहे हैं वो भी गलत है। तो मैं पास्ट को लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर को ख़राब नहीं कर सकता। किसी भी तरीके से हमारी यूनिटी सैटर नहीं होनी चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू मुस्लिम दुश्मन नहीं होना चाहिए किसी भी एक मूवी के वजह से। अंडरस्टूड?